Everyone is going blindly towards the AI. That's the honest thing. Today's world, the talent needs to be agile, adaptable, and also the innovation ready. टैलेंट है बट टैलेंट के पास स्किल भी है हम्म। बट वो टैलेंट या स्टूडेंट या जो भी है जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है गुड डेवलपर कैन नॉट बी द आर्किटेक्ट Good architect. but a good architect can explain what need to come. Before just building the platform, I'm sure this problem exists within that space. But what were the kind of the challenge which the companies were facing or the colleges etc. were facing? Industry has also not that much time, infra or budget to invest for the skill. Exactly. Every student at least participate in one hackathon. Start learning, keep growing, and keep accessing the opportunities. Welcome back to another episode of Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh. Today we are excited again to have Mr. Santosh with us. Santosh is Chief Operating Officer at Where You Elevate. Let's hear more directly from him. Santosh, welcome to the show again. So it's my pleasure again interacting with you, and we'll be having, I hope we are going to have something which are going to be truthful, where we'll be covering the journey of Where You Elevate and the future, how we are going to ignite it. Yeah, exactly. That's the exciting part. That in the earlier conversation we focused more around on your personal journey, how you became the co-founder as well. And during this conversation, we are going to more focus around the platform which Where You Elevate is building and how it is connecting the academia industry as well as the student part. So before we start that conversation, how does your day-to-day looks like at Where You Elevate? See the previous podcast, it was more about the personal growth, personal journey, how this all these things began, and how we have transitioned from a job, from an employee to an employer. It's a big statement when we say as an individual, it's a growth, a milestone. So when we convert from an employee to employer, again here we are working where a lot of life is being impacted through our work. So day to day life, it's look like on daily basis. In morning we have to plan what strategy we have to make because we have a particular vision, a particular mission for which we have built this platform. So सबसे important है कि अगर हम एक एक्शन कर रहे हैं, एक छोटा सा काम भी कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग जा रहा है. We are a 35 people plus team members, so everyone is associated with someone. Some family is associated, and their family members are associated. So our actions has a larger impact. So on daily basis, 24/7, we think what action we are taking. So obviously, on this platform, we have 4 core pillars. So thinking, making the strategy, what new we need to bring, the problem which we are solving, उस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन बना सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, व्हेन वी गो टू द कॉलेजेस, व्हेन वी गो टू द इंडस्ट्री, व्हेन वी मीट इंडिविजुअल पर्सन, द प्रोफेशनल्स, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम कैसे इनोवेशन ब्रिंग कर सकते हैं. क्योंकि जो कोर फाउंडेशन है, फाउंडेशन इज देयर in every small thing bringing that innovation. So obviously interacting, maintaining the culture, again we have a open door policy culture where everyone is accessible with the top leadership, the second level leadership, every team member interact, cross team communication is happening to bring something which is truthful, which is helpful. So obviously maintaining all those culture, maintaining all and creating that constructive environment. Most important where everyone feels or what we have bring that everyone contribution is important. So giving that environment, and when we are interacting same time to the other person, listening them, so we can provide a better solution. We can solution to their problems through our platform. Ultimately the core heart is the platform which we are building. So yeah, it is like that, making the strategy, implementing that, again everything is the execution. Operational things, because we have an idea, आपने उस आइडिया को स्ट्रक्चर्ड कर दिया, आपने पेपर पे उतार लिया, आपने प्लान भी कर लिया, बट जब ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना होता है, देन एवरीथिंग्स कम इनटू वन प्लेस. सो वो एक स्ट्रेटेजी जो है, मोर वी फोकस टुवर्ड्स दैट टू डिलीवर, ताकि जिसको एंड यूजर है, जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड विद द थिंग्स.
And before we will start with the solution space, and we'll come to all the components and what is kind of the roadmap. What is the problem you saw right before, like just building the platform? I'm sure this problem exists within that space. But what were the kind of the challenge which the companies were facing or the colleges etc. were facing, which were not solvable from any other provider? या राइट सो कुलदीप सर क्या होता है, अगर अभी आप भी जाओगे किसी से इंटरेक्ट करोगे इंडस्ट्री में, वी हैव बीन द इंडस्ट्री में जॉब्स रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स, बट वी स्ट्रगल एज ए इंडस्ट्री कॉर्पोरेट स्ट्रगल टू फाइंड अ स्किल्ड पर्सन जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। सेम टाइम टैलेंट है, बट टैलेंट के पास स्किल भी है, बट वो टैलेंट या स्टूडेंट या जो भी है जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे दे कैन पॉलिश देयर स्किल, दे कैन प्रूव देयर स्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में एक ब्रिज, एक गैप है। हम हमेशा कहते हैं इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन हो गई या हमारे एकेडमिया में जो चीजें हो रही हैं, नोबडी कैन टीच, एकेडमिशियन जो हैं उनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता और इंडस्ट्री से अच्छा कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। बट अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करवाने हो तो आपको उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, और या तो उनकी चीजों को अपनी दुनिया में लाके तोड़ मरोड़ के बराबर करना पड़ेगा। दोनों को काम सेम है, सबको एक ही टारगेट पे पहुंचना है, बट उसके रास्ते अलग अलग हैं। सो उन दोनों रास्तों को ब्रीच करने का काम वेरी एलिवेट करता है। तो ये प्रॉब्लम हमने भी फेस किया अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो बाय डिफॉल्ट आई एम नॉट कवर्ड कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या डिग्री की है, क्या चीजें हैं। तो टियर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग किया तो हमें समझ में अपॉर्चुनिटी हमारे तक नहीं आती थी, हमें स्ट्रगल करना होता था। हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि टैलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है तो भी आपकी जॉब नहीं मिलेगी। स्किल सीख लिया, आप मेट्रो सिटीज में नहीं हो तो आप कंपनियों तक नहीं पहुंच सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी, तो जॉब में जाने के बाद वी स्टार्टेड विद अ कॉन्सेप्ट एंड देन वी स्टार्टेड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद आवर जॉब्स। We have done a dry run for each and every solutions which we are providing today. फिर उसको कॉन्सेप्ट करके एक प्रोडक्ट में पिरोया, होता है ना छोटे छोटे जो मोती होते हैं उसको पिरो के एक माला बनती, तो सिमिलर हुए सारी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चीजों को हमने पिरोया, पिरो के एक प्रोडक्ट का काम दिया। आज हमारा प्लेटफॉर्म 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके सारे एस्पेक्ट कवर करता है। एज अगर आप जाके लोगो भी देखोगे तो हाफ सर्कल है एंड देन देयर आर स्टेयर्स। सो हमने जो कॉन्सेप्ट भी दिया है वेरी एलिवेट एज नेम से, कि अगर आप आ रहे हो तो आपका एलिवेशन हो रहा है। अगर आप अपने करियर में स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इंडस्ट्री हो, पर्सन हो, एक स्टेप पे पहुंच गए हो, आपको वहां से एलिवेशन लेना है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो एक कॉन्सेप्ट वहां से आया। जो प्रॉब्लम हमने स्ट्रगल फेस किया, हमने ये सोचा कि अब हम कुछ ऐसा बना के देते हैं सोसाइटी को कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो चीजें हैं, उनको प्रॉब्लम फेस ना हो, उनको सारी चीजें स्मूथली मिलती रहे, ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। किसी न किसी को स्टेयर तो बनना पड़ता है। सो हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो स्टेयर देने की कोशिश की है ताकि एवरीवन कैन अचीव दैट। And I think it is very clear also, from the numbers of like the students enrolled, number of like the institutions which are enrolled, number of like the companies which are enrolled. One thing which you are specifying is like in today's world, the talent needs to be agile, adaptable, and also the innovation ready. What does that mean exactly to someone, right, who don't understand these terms? So see, obviously these are the terms जो कॉर्पोरेट से आए हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो एवरीवन से अजाइल मेथोडोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। एक टाइम पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था तो हम ट्रेडिशनल वे से करते थे, वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे, फिर हम अजाइल में चले गए। अजाइल इज व्हाट? दैट फ्लेक्सिबल, समवन जो कि रेडी है कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए। क्योंकि सेकेंड चीज एडेप्टेबल की जो बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है, वर्क प्रेशर्स आते हैं। हम हर रोज कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं कि यार वर्क प्रेशर है, आईटी में जॉब नहीं करनी चाहिए। एक मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड है, कंसल्टिंग फर्म में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, कंपनी पे कर रही है तो काम करना है, लेबर वर्क हो रहा है, लोग ब्रेक ले लेते हैं थोड़े टाइम के बाद, जब डिलीवरी आती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कि आप अपने आप को उस तरीके से एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, इन्वायरमेंट को। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक फिक्स इन्वायरमेंट आपको मिला हुआ है, एक सिंपल डे टू डे रूटीन है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना है।
नई टेक्नोलॉजी आई तो आपको उसको सीखना है। नहीं सीखेंगे अगर आपको ट्रेडिशनल वे से ही, मैं किसी टेक्नोलॉजी की नहीं बात करता हूँ, एक्सेल की बात करता हूँ। एक्सेल सीट ही कभी ट्रेडिशनली जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम करते थे तो हमारा एक ऑफिस इंस्टॉल करते थे, उसका हम एक्सेल करते थे, उसमें धीरे धीरे टाइप करते थे, फॉर्मूला नहीं लगाते थे। आज की डेट में वहां भी आई इनेबल्ड हो चुका है। एंड नाउ जो हमारा फिजिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था कि सिस्टम में, अभी वो जा चुका है क्लाउड पे। तो चेंज हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी क्लाउड वर्जन आना है, गूगल डॉक्स का भी क्लाउड वर्जन आना शुरू हो गया है। तो ये जो एडॉप्ट करने की टेक्निक्स आपके अंदर है, अगर आप सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ऑन द स्पॉट आपके पास आया, आपने सीखा, इंप्लीमेंट किया, मीन्स आप एडॉप्ट कर सकते हो सिचुएशन को। नाउ द थर्ड थिंग, इनोवेटिव टैलेंट। दैट्स द थिंग कि हर एक छोटे छोटे प्रोसेस में क्या नया आप ला रहे हो। किसी एक काम को करने में अगर आप 4 घंटे लगा रहे हो और आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो आज के डेट में हम एआई एरा में जी रहे हैं जहाँ हर एक चीज टेक्नोलॉजी से हो रहा है। चैट जीपीटी है, एलएलएम मॉडल है, जेमिनाई है, राइट, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स। जो पहले हम एक वीडियो एडिटिंग भी करते थे तो कोई टूल नहीं यूज करते थे तो घंटों लगते थे, हफ्ते लगते थे, महीने लगते थे, वो थोड़े टाइम में हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके कुछ नया कर सकते हो, उसमें उस प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हो। तो दैट माइंडसेट, अ माइंडसेट टू बी इनोवेटिव, कुछ नया खोजना है, प्रोसेस में कुछ नया लाना है जिससे इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ सकता है, वो माइंडसेट लाना। सो बेसिकली ये है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए सीधा मैसेज है, आप रेडी होने चाहिए। आप स्टिक नहीं होने चाहिए कि मेरे को एक ही टेक्नोलॉजी आती है तो मेरे को इसी पे जॉब मिली है। जो इंडस्ट्री की डिमांड है, आप एक बार हायर हो गए हो तो आपको सीखना है। अगर आप इस फील्ड में, तो आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है। आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। और इंडस्ट्री आजकल ऐसे लोगों की खोज रही है जो इवॉल्व करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो is this also related to how the traditional hiring works, like the how it used to be, or what is like the typical process? There will be a job which will be open, then there will be like a job description, then the hunt will start, and maybe by the time you were looking for a talent, it is already a year past. That's true. Like पहले तो ही होता था ना, हमने गए एक पोर्टल पे, जॉब अप्लाई किया, एप्लीकेशन आई, हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ। आज की डेट में तो ऐसा होता है, हम जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ पर जॉब ही नहीं आती है, कॉल ही नहीं आती है, और हम कहते हैं कि इस कंपनी की तो एचआर डिपार्टमेंट हमें कॉल ही नहीं कर रहा है। फिर वो इंटरव्यू प्रोसेस भी ट्रेडिशनली होते थे, पहला राउंड हो गया, एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा राउंड हो रहा है, फिर तीसरा राउंड हो रहा है, तो एक ट्रेडिशनल वे में चलता था। ट्रेडिशनल में बहुत सी कंपनी सिर्फ एमसीक्यू करा लेती थी या कोडिंग करा लेती थी, और उसके बेसिस पे असेस कर लेते थे। देयर आर द मेनी प्रोवाइडर जो कि एक असेसमेंट कर लेते थे, बेंच मार्किंग कर लेते थे कि ये बेंच मार्किंग हमारा 70% हो गया तो ये कंपनी आपको कॉल करेगी, 80% है तो ये कॉल करेगी कंपनी। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रेडिशनल वे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट उसमें इनोवेशन क्या नया ला रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आज के डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो इंडस्ट्री भी मूव कर रही है हैकाथॉन बेस्ड हायरिंग के लिए, केस स्टडी बेस्ड हायरिंग के लिए। जब हम हैकाथॉन बोलते हैं ना, तो लोग कहते हैं टेक्निकल है, मैनेजमेंट की हायरिंग कैसे होगी, सेल्स की हायरिंग कैसे होगी, बट उसके लिए कंपनी मूव कर रही है केस स्टडी सॉल्यूशंस। अब मैं नॉन टेक की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल की तो है, ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, बच्चे ने बिल्ड कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, तो ठीक है, हायर कर लिया, आगे इंटरव्यू लिया। मीन्स अगर उसने उतना काम कर लिया, किसी एक पर्सन ने जो आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके सीवी में कुछ भी लिखा, क्योंकि आज के डेट सीवी तो आराम से चैट जीपीटी से अच्छा बन जा रहा है, उसमें सब कुछ आ रहा है। आप जेडी दो, जॉब रोल लिखो और अपना सीवी दो, चैट जीपीटी आपको जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीवी बना के आपको दे देगा। आपका सीवी फिर सिस्टम तो रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। बट आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो उसमें से कोई स्किल आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट हुआ, जो प्रोसेस कर रहा है एचआर डिपार्टमेंट का उनका टाइम वेस्ट हुआ, कैंडिडेट उनको फिट मिला नहीं। तो नया वे ऑफ हायरिंग क्या हो गया, हायरिंग हैकाथॉन्स। केस स्टडी के केस में एक केस दे दिया, एक कंपनी है, उसके ब्रांड के बारे में पढ़ो, उसका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनालिसिस करो, उसका B2B सेल्स कैसे जनरेट करोगे, पूरी कैंपेन डिजाइन करके दो। अगर आप उस कंपनी का उतना काम करके एक पीपीटी भी सबमिट कर दे, मींस आपको समझ में आ गया कंपनी का प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। मींस आप उसको सेल कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। टेक में भी
एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर दिया। हम जब इंडस्ट्री में थे तो पीओसी करते थे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करते थे, हर एक चीज का। कोई प्रोडक्ट आता था या किसी कस्टमर के लिए हम प्री सेल्स कर रही होती थी हमारी टीम। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया, भले ही आप टूल्स यूज करो, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई डिसएग्री होगा कि हम इंडस्ट्री में बिना चैट जीपीटी, बिना गूगल किए हुए हर एक सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस लो, समझो, बट उसको इम्प्लीमेंट करके फिर प्रेजेंट करो कि आपने कुछ बनाया है। अगर आप एक्सप्लेन कर लिए मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आजकल कंपनी इस जो न्यू इनोवेटिव हायरिंग तरीका है ना, हायरिंग हैकाथॉन, इसके थ्रू मोल्ड हो रही है, इसके थ्रू जा रही है। चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो मिड साइज कंपनी है, चाहे स्टार्टअप है, और उनको वैल्यू मिल रहा है उनको, क्योंकि वो क्रक्स मिल रहा है। जो टैलेंट उसको करके दे रहा है ना, वो पहले दिन से ना प्रोजेक्ट पर डिप्लॉयबल है। नहीं, कंप्लीटली एग्री। और ये टैलेंट की जो पाइपलाइन है, दिस इज आई थिंक द प्रॉब्लम व्हिच एवरीवन इज फेसिंग. So within this platform, right, which at the where you elevate, you have built it. What are like the core component, and how you are ensuring that the end-to-end talent pipeline is solved with this? ओके ग्रेट। सो आई थिंक जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया ना, हमने बोला पहले इस पे 4 स्तंभ हैं। 4 pillars. Yeah, 4 pillar. And इसलिए I told, and every aspect of that is covering. Okay. So we have a Recruit, which is the AI powered ATS, application tracking, like तो जॉब बोर्ड है हमारा, which is the AI powered, जहाँ पे आप complete AI source talent pipeline, like a candidate is coming posting a job, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीका आप मना नहीं कर सकते हो, जॉब पोस्ट आपको करना है, तो उसका एक कंप्लीट जहाँ पे एप्लीकेशन आती है, कैंडिडेट का ऑटोमेटिक AI इनेबल्ड पाइपलाइन बनी हुई है, जो इनिशियल स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट के सीवी के बेसिस पे, जॉब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक पूरा वेटेड समरी बना के आपको दे देता है कि ये कैंडिडेट इतना एलिजिबल है, इस रेंज में है। जो कैंडिडेट 70% का बेंचमार्क नहीं पूरा कर पाते हैं, ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हैं। वहीं से कैंडिडेट को भी पता चल गया कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो आगे राउंड के। इसमें रिक्रूटमेंट में एक और प्रॉब्लम होती थी कि एज ए एप्लीकेंट मेरे को पहुंचता ही नहीं था कि मेरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है। तो हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा इंश्योर की कि कोई भी एप्लीकेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता नहीं होना चाहिए वो कहाँ पे है। रिजेक्ट हो गया, उसको पता है कि वो नाउ रिजेक्टेड, वो आ गया। वहां पे एचआरस के भी काम कम हो गए, क्योंकि हर एक सीवी को देखना, ऑलरेडी एक समरी आ चुकी है, उसको देखना इजी काम है। प्लेटफॉर्म से ही आपके इंटरव्यू शेड्यूलिंग हो जाते हैं। शॉर्टलिस्टिंग हुआ, जो इंटरव्यूअर है उसके बाद शॉर्टलिस्टेड, स्क्रीन सेलेक्ट बंदे चले गए, इंटरव्यू हुआ, उनका इवैल्यूएशन आया, नेक्स्ट राउंड शॉर्टलिस्ट में, नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड। सेम वे वो कम्युनिकेशन आगे कैंडिडेट को हो रही है, कोई अलग से मेल नहीं करना है कैंडिडेट को, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे जाके अपने डैशबोर्ड एक्टिविटीज में देख पा रहा है कि वो किस राउंड तक पहुंचा है। ऑफर लेटर रोल आउट हुआ, उसे पता चल गया कि ऑफर लेटर आ गया। एक कंप्लीट पाइपलाइन, दिस इज द ट्रेडिशनल वे से जो हम जॉब बोर्ड कर रहे हैं, जहाँ पर हम सीवी वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सब कुछ हम एआई पे नहीं रह सकते, क्योंकि एआई भी 100% एक्यूरेट नहीं करता। तो हमारा इन हाउस टैलेंट एक्विजिशन की टीम भी बैठती है, जो कि टेक्निकल रिक्रूटर्स की एक्सपर्ट टीम है। तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट एक लेयर हमारी टेक्निकल रिक्रूटर्स की होती है। आफ्टर दैट लेट्स गो टू द कस्टमर। तो कस्टमर को ऑलमोस्ट 75% काम रिड्यूस हो जाता है। एंड देयर हैज बीन सम सक्सेस स्टोरी, मे बी इन प्रीवियसली इट विल बी शेयर्ड, कि देयर आर फर्म जिनकी 6 महीने 1 साल से पोजीशन नहीं क्लोज हुई है, थ्रू अस दैट पोजीशन गॉट क्लोज्ड। एंड इसमें द सेकेंड प्रोडक्ट विच इज द ड्रिल, AI पावर्ड हैकाथॉन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। सो विल डिस्कस ऑन दैट हाउ दिस थिंग्स आर कमिंग। तो जब हम हायरिंग हैकाथॉन करते हैं, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होस्ट करते हैं, तो हायरिंग में ही वो प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट हो जाता है। ओके। तो हायरिंग हैकाथॉन वहाँ होस्ट हुआ, एप्लीकेशन वहाँ आई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ गया, जो सोल्यूशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे ही सबमिट कर रहे हैं, फिर प्लेटफॉर्म पे ही जजमेंट हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे ही इवैल्यूएशन हो रहा है, वहीं से रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, फिर वहां से इंटीग्रेट होकर बाकी पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे चले जाते हैं। तो दीज 2 प्रोडक्ट। अब इसमें जो थर्ड आता है असेसमेंट, ऑब्वियसली देयर आर सम फॉर्म जिनको ट्रेडिशनल वे से भी जाना है, एमसीक्यू भी करवाना है, कोडिंग राउंड भी कराना है, रियल टाइम असेसमेंट भी कराना है। तो देयर कम्स आवर असेसमेंट इंजन। Assessment engine is integrated with Recruit, integrated with Drill as well. So in between that's comes जहाँ से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, और हम रियल टाइम असेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी अगर हायर करना है, SOC एनालिस्ट अगर हायर करना है, तो CTF चैलेंज होता है, कैप्चर द फ्लैग रियल टाइम। तो दैट प्रोडक्ट अ साइबर रेंज, सो वी हैव अ व्यू रेंज प्रोडक्ट, जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी के हैकाथॉन भी होस्ट कर सकते हो, हायरिंग भी कर सकते हो, रियल टाइम सिनेरियो देके
and we can build you and help you to design that things also. क्योंकि we recently we are doing, there are already 2 cyber security hackathons is live on platform, so such kind of the things we are providing through this solution. And the last one, open innovation, that concept. So that open innovation is something जहाँ पे इंडस्ट्री अपनी रियल प्रॉब्लम दे रही है सॉल्व करने को, और एकेडमिया के साथ हम काम कर रहे हैं. और एकेडमिया में जो अपस्किलिंग प्रोग्राम है, वी से एक्शन फर्स्ट प्रोग्राम, हमारे जो प्रोग्राम है एक्शन फर्स्ट अपस्किलिंग प्रोग्राम है. आप एक्शन के थ्रू सीखो, क्योंकि सीख तो आप पहले रहे ही हो, सीख के आप वो अपस्किलिंग प्रोग्राम कर ही रहे हो, क्या नया कर रहे हो. तो रियल टाइम इंडस्ट्री यूज केस लो, उसको इम्प्लीमेंट करो, सीखो एंड देन गेट हायर्ड. एक और चीज है, what you said is about the drill, right? The hackathon platform. But hackathon platform तो traditionally भी थे, काफी लोग अभी भी यूज कर रहे हैं. What is the key difference within this module you have built? So what we have built, Kuldeep sir, that's entirely, hackathon is not just a listing page or a registration form. Traditionally आपको यही मिलता है, जितने भी प्लेटफॉर्म आप देखोगे. तो हैकाथन इज समथिंग जहां पे आप एक माइक्रोसाइट बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन ले लिया, टीम बिल्डिंग हो गई. टीम बिल्डिंग पर अगर आपके पास मल्टीपल फेजेज हैं तो यू कैन डिफाइन दैट मल्टीपल फेजेज. मल्टीपल फेजेज के बाद आप सबमिशन ले रहे हो, वो भी प्लेटफॉर्म पे ही सबमिशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे ही आपका जजमेंट हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे ही आपका पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट हो रहा है, मेलिंग कम्युनिकेशन आपका प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, रिजल्ट अनाउंसमेंट आपका प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आपको प्लेटफॉर्म से जनरेट हो रहा है. तो कंप्लीट इंटायर पाइपलाइन एक हैकाथन की, कंप्लीट कैंपेन ऑफ प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज कर सकते हो. दैट इज द आवर यूएसपी. जहां पे जजमेंट के साथ साथ, जजमेंट इज वन यूएसपी, क्योंकि अभी भी आप बाकी प्लेटफॉर्म पे जाओगे या वहां से करते हैं आप, तो मैं यूजुअली जो कॉलेजेस विजिट करता हूँ, हैकाथन में एज ए जज जाता हूँ, देखता हूँ, आई हैव बीन इवेल्युएटिंग SIHH. क्या होता है कि इसमें कॉलेज में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, रजिस्ट्रेशन आ गया, उसके बाद सारा काम मैनुअल चल रहा है, एक्सेल शीट से चल रहा है, गूगल फॉर्म से चल रहा है. लास्ट डे इवेल्युएशन के लिए पेपर पेन आते हैं. एग्जैक्टली. हम जजमेंट करते हैं पेपर पेन पे, फिर वो पेपर पेन जाके सर्कुलेट होता है, फिर वो मार्किंग होती है. अब उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे भी मार्क्स किए जा सकते हैं, बट आप प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो. And transparency is the one key. And then management. जो आपके 10 रिसोर्स लग के काम कर रहे हैं, आपके एक सिंगल रिसोर्स काम कर सकता है. हर एक जज को उसका इंडिविजुअल पैनल मिल जाता है. वहां पे जाके जो टीम उसको असाइन है, उस टीम के सारा वो सोल्यूशन देख सकता है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया दे सकता है. आपने एज ए जज जैसे ही रिमार्क फिल किया, आपके स्कोर लॉक हुए, स्कोर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग टीम को पता चल जाता है. तो लाइव लीडर बोर्ड भी उनको पता चलता रहता है. सो दैट इज द यूएसपी, द कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ द सॉल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, द ड्रिल इज इंटीग्रेटेड विद एडिशनल सॉल्यूशनिंग, जहां पर रियल टाइम असेसमेंट कराते हैं. फॉर एग्जांपल, साइबर सिक्योरिटी का कैप्चर द फ्लैग कराना है आपको, तो हमारे पास साइबर रेंज भी इंटीग्रेटेड है, हमारा प्लेटफॉर्म उससे भी इंटीग्रेटेड है. असेसमेंट कराना, असेसमेंट ऑलरेडी मैंने बोला इंटीग्रेटेड है, बट साइबर रेंज भी कराना है. तो स्टूडेंट अगर CTF चैलेंज भी क्या होता है, अभी क्या होता है कि एक VM देती है, एक वार्क फाइल दे दिया, आपने डाउनलोड किया, लोकल में काम कर रहे हो. हम ऐसा करते हैं, आपका अटैक और आपकी पर्सनल मशीन, दोनों मशीन यूजर को देता है. आप क्लाउड में लॉगिन करो, अपना क्रेडेंशियल लॉगिन करो, वहीं पे कंप्लीट करो, वहीं पे फ्लैग कैप्चर करो, अपना टास्क कंप्लीट करो और सबमिट कर दो, आपका लीडर बोर्ड आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा. तो सच का फॉर AI ML, द कंप्लीट ML स्टूडियो टाइप ऑफ द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड देयर. तो रियल टाइम, आपको जो रियल टाइम असेसमेंट करना है ना, वो भी ड्रिल में इंटीग्रेटेड है. आप जो कस्टम फील्ड लेना चाहते हो, PPT है, वीडियो है, कोड है, ये सारी चीजें आप अपलोड करा सकते हो, और आपके पास पूरी रेपो का एक्सेस रहेगा. तो आपको 4 जगह पे नहीं जाना, आपको एक जगह सेंट्रलाइज मिल रहा है और कंप्लीट पैकेज मिल रहा है ड्रिल में. दैट्स वेयर वी आर डिफरेंट. And I think that's important, and I see a value, and I'm sure this platform, or specifically in the drill part, would have been used by some of the companies. Any specific improvement or the metrics which they have shared with you? Yes. So अभी क्या था कि इतने दिन से हम ड्रिल यूज कर रहे हैं, देन देयर वाज सम वन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनके पीपीटी, क्योंकि पीपीटी अगर 10 स्लाइड या 20 स्लाइड का है तो जजेस को, तो जजेस भी बोलते हैं यार इतने लोग का इवेलुएट करना टाइम टेकिंग है. Hmm. So now we are introducing a feature of AI evaluation. Okay. So PPT पढ़ा, उसका क्रक्स निकाला, समरी निकाला, the parameter which we have given. On basis of that it will give the summary. तो एज अ जज, एज अ इवेल्युएटर, अगर हम जजमेंट बोर्ड में जा रहे हैं तो विल बी एबल टू सी कि इसकी समरी ये है, अगर उससे वी आर सेटिस्फाइड देन फाइन, नहीं तो हम वी कैन ओपन एंड पुट आवर रिमार्क. सो इट्स हेल्पिंग द जजेस टू बीइंग फास्ट. सो टाइम कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है थ्रू द एआई इवैल्यूएशन. एक चैलेंज आता है जब हम ऑनलाइन इंटायर कैंपेन रन करते हैं, तो टू शेड्यूल द मीटिंग, पार्टिसिपेंट्स को ही पता चले, हमें ही पता चले, तो वी हैव कम अप विद द शेड्यूलिंग एज वेल. कि एज ए ऑर्गेनाइजिंग मैं शेड्यूल कर सकता हूँ मीटिंग, जब अवेलेबल हो, जब पार्टिसिपेंट अवेलेबल हो, उसके हिसाब से वो शेड्यूल हो सकता है और उसके हिसाब से उनका जजमेंट एंड इवैल्यूएशन हो रहा है. तो दोनों की स्लॉटिंग सही है. So these are the some improvements, some features we have come up. There have been requirement of the custom field कुछ होती हैं. कभी कभी क्या होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है तो पता होती है. अभी हमारे पास एक कस्टमर आया था फॉर अ हैकाथॉन. ही वाज लुकिंग फॉर कि नॉर्मली किसी भी हैकाथॉन में ऐसा कॉलेज का नाम हमने ले लिया बस, या डिग्री ले ली, इतना इज फाइन और पासिंग ईयर, इतने से काम हो जाता है. नाउ ही केम कि मेरे को कंप्लीट चाहिए. लाइक ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग मंथ क्या है, ईयर क्या है, कब कंप्लीट हो रहा है, कॉलेज की लोकेशन क्या है, उसका पिन कोड क्या है, उसका स्टेट क्या है, कौन सी कंट्री है, ये सारे फील्ड भी आप ड्रिल के थ्रू कस्टमाइजेबल है. तो आप कस्टम फील्ड बना लिया, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी यूज करो उसमें. अब फ्यू पीपल कम कि मेरे को अंडर ग्रेड है या पोस्ट ग्रेड है, सो अंडर ग्रेड में मेरे को कुछ स्पेसिफिक डिग्री ही अलाउ करनी है. ओके, दैट इज अगेन ट्रिक. सो आवर प्लेटफॉर्म इज दैट कस्टमाइजेबल कि आप सिर्फ वो 4 डिग्री सेलेक्ट करो, वही 4 डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म में दिखेंगे, उसके अलावा जो डिग्री के बच्चे हैं अप्लाई नहीं कर पाएंगे. देन कम कि अगर कोई एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ अंडर ग्रेड ही अप्लाई कर सके, पोस्ट ग्रेड नहीं अप्लाई कर सके. सो दीज आर द सम फीचर, समथिंग जो कि कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही हैं, चीजें आ रही हैं जो फीचर्स. एंड देन मेल कम्युनिकेट करना, व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना, टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, क्योंकि इंस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं. तो ये सारी चीजें आती हैं. एंड देयर आर सिनेरियो कि किसी हैकाथॉन में सिर्फ टीम लीड रजिस्टर कर रहा है, अपने टीम मेंबर्स के डिटेल्स डाल रहा है. तो दैट काइंड ऑफ द थिंग्स वी गेट day to day feedback and then get implemented. Yeah. No, and this is fine. Like, let's say now the hackathon was conducted and I was selected as well. How like the hackathon was conducted and now I was selected as well. How does now the recruitment process looks like? Is it something like now a total separate, or this is also part of the platform so that the employer also know at which stage it is, and also the person who is applying also know at which stage we are? Yeah, it's for both the side. Okay. एम्प्लॉयर को भी पता होता है एंड जो अप्लाई कर रहा है यूजर है उसे भी पता होता है. तो हैकाथन में जब मान लीजिए आप फिनाले में आ गए, सो वी हैव रिसेंटली जस्ट कंक्लूडेड वन हायरिंग हैकाथन फॉर वन ऑफ द स्टार्टअप यूलर्न. They were hiring for the AI agentic engineers. That was the niche. आज की डेट में अगर हम बात करें तो AI agentic engineer is the niche. Everyone is moving toward that, making that agent, such kind of the things. So they have done. He has come up with 2 requirement. Hackathon से he has hired more than 6 people. Okay. Because he find that talent. जो प्रॉब्लम दी थी there is a team की, उनकी 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. कुछ लोगों ने दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मर्ज करके सोल्यूशन बना दिया. For him as a USP, right? हैकाथॉन में है, ग्रैंड फिनाले में जजमेंट हुआ. एम्प्लॉयर इज आल्सो नोइंग किसी स्टेट में जा रहा है कैंडिडेट, एंड एम्प्लॉयर कैन ट्रैक ईच एंड एवरी फेज. वो हर एक चीज देख सकता है. अगर वो बोलता है ये चीज नहीं है, दीज आर नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड. एंड दे वर हायर्ड एंड गेट ऑफर्ड ऑन द फिनाले डे. So both the way, it's completely informative for the user as well as the employer. So you are saying like now the recruitment is not as separate, it is like part of the process, and as quickly they move from one stage to the another one, they would know what is the status, and this is like a transparent with both, right? With the applier and the the company who is hiring. Right, sir. And also, right, for example, and within these platform, or when you open for the hackathon or any job posting, etc.,
I'm sure these lists are clear to them, so there is no like at the late on stage, hey, we were looking for this skill or we were looking for that specific problem, but it was not solved. So that, like, rather than having that conversation towards the end, this is something which is being done at the start of the process itself. Yeah, right. So like how this complete process, like जब एक requirement आती है तो our sales team sit there Hmm. to gather their requirement, then that pass on to the business team Hmm. जो डिलीवरी करनी है, एंड Hmm. देयर इज अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट जिसमें रिक्वायरमेंट आती है एंड एवरीथिंग गेट एग्रीड, Hmm. क्योंकि आपकी एज ए एम्प्लॉयर अगर आप मेरे पास आ रहे हो एज अ कस्टमर तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना मेरी जिम्मेदारी है, Hmm. और अगर आप खुश हो गए उससे तो आप 4 लोग को और रेफर करोगे, Hmm. और हम उसी फंडामेंटल पे काम करते हैं। Hmm. दैट इज आवर बेसिक प्रिंसिपल कि अगर मैंने आपको कुछ दिया Hmm. तो आप ऑलरेडी डिफाइन कर दोगे कि मेरे को इतनी चीज चाहिए, दिस इज माई बेंचमार्किंग। Hmm. उसके अलावा जो कुछ आएगा मेरी टीम और मेरा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उसको फिल्टर आउट कर चुका रहेगा। Hmm. आपका टाइम कंजम्पशन रिड्यूस हो गया Hmm. और अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो आपका फुलफिल होना चाहिए। Hmm. क्योंकि हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत चीज़ें अवेलेबल है, बहुत एप्लीकेशन आ जाती हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी रोल पे। अगर आप एक जॉब पोस्ट करो आज के डेट में आपको 1000, 2000, 3000 एप्लीकेशन आएंगे, बट वो एक रिलेवेंट, आपकी पोजीशन तो एक ही, आपको एक रिलेवेंट चाहिए लेकिन वो रिलेवेंट नहीं मिलता है। Like I might be having one, so it might require like a 5 or 10 or 20, maximum 20, but not like the नो, 1000. Platform is good. And now I see one another thing is the open innovation experimental learning. What is that all about? so open innovation experiential learning, that the thing, as the name is in itself says, ओपन इनोवेशन क्या, कुछ नया प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम जहाँ कुछ नया आप करने जा रहे हो, बट बाय डूइंग नॉट बाय लर्निंग। हम एक फिलोसॉफी पे चलते हैं हमेशा, एक फंडामेंटल हम ट्रेन रहते हैं कि यार पहले हम सीख लें फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम रिवर्स अप्रोच लेते हैं Okay. कि करो, करते हुए सीखो, और वो करना भी जो है वो आप डमी नहीं करोगे, आपको इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हम देंगे। So internal metric is fine, Santosh, and I know like this is something where you have validated. Have you also got some feedback from the customer externally who has started using this functionality and they mentioned, yeah, hey, it is beneficial for them? Yes, so there are a lot of the customers जिन्होंने थ्रू दिस, मैंने जो इंटरनल का एग्जांपल दिया, सेम वे दे हैव थ्रोन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनका जो फीचर था दे हैव गेट वैलिडेटेड दैट फीचर, और फिर उस टैलेंट को उन्होंने हायर किया, Okay. ऑफर देके हायर करके वो प्रोडक्ट बनाया। तो सिमिलर वे ड्यूरिंग द कोविड टाइम पे, जैसे डीएसएस कोविड केसेस को ट्रैक करने के लिए, तो वन ऑफ आवर कस्टमर और सेपो एनालिटिक्स, जिन्होंने एक प्रॉब्लम थ्रो किया और उस पर सोल्यूशन बना, जो सोल्यूशन बना, जो डैशबोर्ड बना, दे वर हायर्ड, उन्होंने उस सोल्यूशन पे काम किया, और फिर वो सोल्यूशन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ने यूज किया फॉर ट्रैकिंग द केसेस ऑफ कोविड। सिमिलर वे रिसेंटली आईटी में अगेन देयर इज वन फॉर्म केस सॉल्व्स इन नोएडा ओनली, सो दे हैव रन, दे वर हायरिंग द फ्रेशर्स फॉर एआईएमएल। एआईएमएल के लिए तो ट्रेडिशनल वे से हायर करना इज नॉट अ इजी वे, राइट, to validate the algorithm because packages and everything, packages you can do, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के उसको सॉल्व करना। सिमिलर वे YouLearn.ai, a startup who is started, so उन्होंने पूरी टीम अपनी हायरिंग हैकाथॉन के थ्रू ही हायर किया। सो इनको बेनिफिट क्या होता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बच्चा जाता है, कोई एक स्टूडेंट हायर होता है, तो ही इज ओपन टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंट, दैट इज द वन की एस्पेक्ट ऑफ दैट। एंड बाय गिविंग दैट प्रोजेक्ट, तो हम जो हैकाथॉन भी इनका करते हैं ना, उसमें फेजेज रखते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पहला राउंड होता है प्रोटोटाइप सबमिशन, पहले दिन में सोल्यूशन नहीं होता है, प्रोटोटाइप सबमिशन। प्रोटोटाइप में क्या है कि उस प्रॉब्लम को देख के, अगर हम आईटी में काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, लाइक फ्रंट एंड सर्विसेज, बैक एंड सर्विसेज, हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग, एंड यूजर को कैसे मिल रहा है, कैसे रेस्ट एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले, ये सारी चीजें कि स्टूडेंट उस प्रॉब्लम के लिए जो बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट जो बना रहा है, उसके लिए पूरा आर्किटेक्चर बना के देता है। तो एज ए इंडस्ट्री आप खुद सोचो, एक फ्रेशर है जिसको आर्किटेक्चर, एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम की समझ में आ गया, एक प्रोडक्ट का समझ में आ गया, मीन्स वो इम्प्लीमेंट तो फिर कर लेगा उसको। उसके बाद हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर उस
टीम को जो शॉर्टलिस्ट होती है उनको 15 दिन का 1 महीने का टाइम दिया था अपने सोल्यूशन को बिल्ड करने का, बिल्ड करके फिर उसको प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करते हुए कोड के साथ वो सबमिट करते हैं, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन दे हैव कॉल्ड फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन फॉर द इंटरव्यू। तो इस पूरे प्रोसेस में वो कंपनी के विजन के साथ, क्योंकि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कंपनी का कल्चर और विजन जो इंडस्ट्री हायर कर रही होती है उनसे क्या उनको डिलीवर करवाना है, उसके साथ वो अलाइन हो जाता है। तो हमें जो फीडबैक मिला, जैसे जो भी कस्टमर आता है ना उसको एक टैलेंट चाहिए होता है जो रेडी हो कुछ सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो अजाइल वर्ड हम यूज कर रहे थे, जो क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी टैलेंट, स्किल्ड पर्सन एंड जो एडेप्टेबल होते हैं, जो इनोवेटिव थिंकिंग होती है। मतलब हम बेसिकली सोचते थे कि यार थियोरी तो सब कर देते हैं, हमें ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसका साफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो फिर मतलब वो जैसे होता है ना डिसीजन मेकिंग, वो होता है ना थिंकिंग, कैसे वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, लाइक व्हेन वी वर आल्सो इन जॉब। सो वो जो आर्किटेक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हर एक गुड डेवलपर कैन नॉट बी द आर्किटेक्ट, गुड आर्किटेक्ट, बट अ गुड आर्किटेक्ट कैन एक्सप्लेन व्हाट नीड टू कम। मतलब जो बिजनेस का स्टेटमेंट आ रहा है उसको समझ के उसको आर्टिकुलेट करना, दैट इज द वन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो एक टैलेंट में एवरी इंडस्ट्री लुक फॉर दैट। क्योंकि हम जेनजी में हैं, लाइक वी आर सेइंग कि जेनजी आ रहा है और उनका होता है ना कि माइंड शिफ्ट हुआ, मूड स्विंग्स हुए, यार मन किया तो काम किया, नहीं किया तो नहीं किया। बट उसमें भी वो टैलेंट आइडेंटिफाई करना जिनके अंदर वो नॉलेज बेस भी हो, वो शार्पनेस भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, उसके अंदर वो क्वालिटी और स्पीड भी हो किसी चीज को करने का। क्योंकि दीज आर की मैट्रिक्स जो मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री के हिसाब से, दे ऑलवेज लुक फॉर सच काइंड ऑफ द टैलेंट कि एक बेंच मार्किंग है, इस बेंच मार्किंग पे तो मेरे को टैलेंट चाहिए। और आज के डेट में ट्रेडिशनल जो आ रही तो आ रही है, बट वन थिंग ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व, पीपल like industry look for a person who has a mindset to product building mindset, not from a developer point। अब डेवलपर हो ठीक है, बट आपका माइंडसेट प्रोडक्ट वाली होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। And I'm sure, right, while using this, maybe the client itself would have shared some of the key metric which got improved after leveraging this. Yes, right. See, सबसे पहले जब हमने किया था तो देयर आर सम फीचर्स जो कि हमारे पास नहीं थे, मैनुअली वो अप्रोच के थ्रू हुए थे। देन जब एआई की बात आई हमारे पास, तो एआई में एक चीज आता है कि आप मॉडल कैसे वैलिडेट करोगे, क्योंकि एक सेगमेंट है, कोड तो आया, आपने कोड रन कर दिया, बट आप कितने लोगों का कोड रन करोगे, आप कैसे प्रोजेक्ट रन करोगे। और अगर आप प्लेटफॉर्म खुद का प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चा जाके गूगल कर ले रहा है या कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दे रहा है, how you will validate, how you are going to validate। एक प्रॉब्लम और आती थी कि प्रॉब्लम दे दी, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जब हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, जब एक बिजनेस अपनी प्रॉब्लम अपने तरीके से बताता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड, लाइक उसको ब्रेक करके स्टूडेंट्स को बताना, जहां पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉक थ्रू करवाते हैं ताकि वो उसको बना सके, क्योंकि देयर इज अ गैप और वो गैप कभी भी फिल नहीं हो सकता, आप उसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो थ्रू वेरियस थिंग्स। सो दैट वाज वन थिंग कि इन चीजों को हम कैसे, दैट्स वेयर वी कम अप विद द रियल टाइम असेसमेंट्स, दैट इज वन कॉल्ड एआई बैक्ड रियल टाइम असेसमेंट। अब क्वेश्चन बैंक भी है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक का तो 5,000 10,000 1 लाख इतने क्वेश्चन आप बना सकते हो। फिर चैलेंज आता है कि वही क्वेश्चन बार बार दूसरे स्टूडेंट को रिपीट हो रहा है, या वो टाइप करके चैटजीपीटी से पूछ के कर ले रहा है, समथिंग देयर जो ऑटोमेटिकली अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं 10 के 10 को डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, द फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट इज सेम, बट क्वेश्चन का मॉड्यूल चेंज हो गया। सो दिस वे वी आर इम्प्रूविंग द मैट्रिक्स, और उस वजह से प्लेटफॉर्म की भी मैट्रिक्स इंप्रूव हो रही है। Ultimately the platform is becoming more serving that solution इस तरीके से आ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। And what are some of the key things which you are adding it from the future roadmap perspective to make it more simplified, maybe like adding some AI functionality etc in the future? Yes, one thing is there, AI functionality,
Obviously AI is being implemented, Hmm. but as I have the in that domain experience as well, we always do not rely completely on the AI. Hmm. What we believe, AI can simplify your work, Hmm. but ultimately a human thinking, a human decision making is also required into Hmm. that. तो जो प्रोसेस हमारे रिपीटेड हैं, Hmm. जहाँ पे एआई के हेल्प से वो फास्ट ट्रैक हो सकता है, Hmm. देयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द एआई. या कुछ ऐसा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सोल्यूशन या कुछ चीजें ऐसी आती हैं जंक होती हैं, Hmm. जिनको आप देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इवेलुएट कर रहा है उसका भी टाइम हो रहा है पूरे प्रोसेस में. Hmm. तो उन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए एआई करना या कुछ सजेशन देना. Hmm. So I think recently we were having one discussion with one of our corporate. Hmm. So वहाँ पे क्या था, उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि कभी कभी क्या होता है कि जो इवेल्युएटर्स होते हैं, इंटरव्यूअर्स होते हैं, Hmm. कभी कभी क्या होता है लिख देते हैं नॉट गुड, कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं जो हम एज अ फीडबैक आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. समटाइम लाइक दैट द ह्यूमन बीइंग. Yeah, तो yeah. इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? There Hmm. they have saying कि can we implement AI there which can suggest the word like one appropriate word जो कि आगे communicate कर सकता है इंटेंट के बेसिस पे आप क्या लिखना चाहते हो. सम वेग स्टेटमेंट भी आया तो उसको रेक्टिफाई करके आगे देगा. Yeah. And sometimes you don't want it to be very much harsh as well. Yes, Right. because sometimes see, you are correct at your level but understood the front person who is coming, because someday we are also work at the another side of the table Hmm. feeling same thing, I stress. Obviously they have a pressure to get a job, Hmm. but how we can communicate in the better way. So we are implementing the AI in judgment feature also. We are coming up with the AI. We are coming up with the AI where if you are a completely new person and want to organize that, you are looking for a structure, a complete template, we'll be coming up with that where if you are not knowing anything about this thing, Hmm. आपने क्वेरी डालो आपको कंप्लीट टेम्पलेट क्रिएट होके आ जाएगा. बट वो बेसिक आएगा, Yeah, yeah. उसको आप पर्सनलाइज कर सकते हो. आप सब कुछ एआई से नहीं कर सकते, बट यस देयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग, Hmm. जिससे कि वो चीजें हेल्पफुल हो रही हैं. Yeah. And assume, right, the whatever feature which you are thinking you are able to implement, and whatever kind of the customer base, etc., which you are hoping or expected to grow, you are able to get that as well. So where do you envision, right, maybe after 5 years that this platform will look like this, it will have all these feature set, etc. So in initial of this conversation also I told कि we are working at 360 degree. सब कुछ कवर कर रहे हैं. अगर हम एक इकोसिस्टम बनाएं तो एक इकोसिस्टम हमारा इंडस्ट्री भी आता है, एकेडमिया भी आता है, स्टूडेंट या टैलेंट भी आता है, गवर्नमेंट बॉडी भी आती है. यही चार चीजें इस इकोसिस्टम में अगर हम बात करें जहाँ पर इनोवेशन हो रहा है, इन चारों इकोसिस्टम में यूजर में आप कवर कर सकते हो. अब चारों कनेक्ट कर रहे हो. एक प्लेटफॉर्म ऐसा जो सबको कनेक्ट कर रहा है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है. So once we are doing that and integrating these complete things together, we are going to make, we in next 5 year obviously this platform is going to be the powerhouse for open innovation. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके आपको जो चाहिए वो मिल रहा होगा. A centralized platform and everyone is elevating. जिस भी डॉट पे वो आया है ना, like always there is 2 steps. अगर आप किसी के जर्नी में बात करो, तो हम कहते हैं कि टैलेंट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? टैलेंट का प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं. Institution, हाँ. उस प्रोडक्शन का कस्टमर बेस कौन है? कौन उनको एक्वायर कर रहा है? इंडस्ट्री या गवर्नमेंट कर रही है, राइट? और पाइपलाइन तो वहां से क्रिएट हो रही है. अब उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्किल्स की. स्किल ओरिएंटेड कौन कर रहा है? वहां से आ रहा है. कॉलेज तो थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है, नोबडी कैन बीट देम इन द थ्योरेटिकल, बट इन प्रैक्टिकल industry has also not that much time, infra or budget to invest for the skilling. Exactly. Right? They also need a helping hand. Same time government also need a helping hand to implement their initiative, to because they have the things. We are providing everything on this platform through that. हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म भी वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट दे आर कमिंग एंड इन बिटवीन दे आर लिविंग देयर. उसके बाद उनको आगे का रोड मैप नहीं बता रहे हैं, सिखा दिया छोड़ दिए. हम क्या कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट भी पूरा कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी हम पूरा कर रहे हैं. तो अर्लियर वी वर जस्ट डूइंग द पार्ट की उन्होंने एक बार स्किल हो गए तो उनको डायरेक्ट मैपिंग करके आगे डिप्लॉय कर रहे थे, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे थ्रू आवर सॉल्यूशन. बट व्हाट वी हैव सीन कि उसमें भी गैप आ रहा था.
टैलेंट की क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी इज वन की मैट्रिक्स, Hmm. स्किल्ड क्वालिटी। सो अब हम दोनों स्टेप करते हैं, डायरेक्टली कॉलेज इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि जो बेंच मार्किंग है वो बेंच मार्किंग हमारी मीट हो रही है। Yeah. And if I can summarize it also, right? For example, like of course you are focusing on all the four different personas. For example, like the government, institution, industry, as well as the student. So maybe like down the line you expect, hey, there is one opening or someone would like to opt, and then it is getting published. If it is part of the hackathon, that hackathon is also being conducted, and then the people you are getting selected, and maybe by the time that the entire pipeline looks like a less than a week or so, or maybe like a less than a month, not kind of the years of work, and everyone do have the visibility. So for example, even if I am still, because there will be like a tier 2 and tier 3 city existing, that person do have access to this data, and it is not only in a isolated view. राइट, that's the one thing you have sir pointed, very very important. tier 2, tier 3 and tier 4, Mhm. those are the audience जो सबसे कम accessible होती है उनके लिए। So you are And trying to increase the accessibility. so we are, our core reach of where you elevate is there only. And tell me one more thing, right? Because the product is good, right? The platform you have built, you are adding those features. What is your go-to strategy also? Because you need to also focus on that as well, so that it is not only a good product is just built, but it is also reaching it to the audience. Yes. So main core vision, a tagline which we say Yeah. through this platform: build, already they're coming building, engage, and then elevate. These are the 3 steps. In Verigrate logo also 3 stairs: build, engage, and then elevate. So this is the market strategy where we are giving for everyone. You are looking for something, come build on this. If you are a corporate, come here, engage with the talent and elevate together, because everyone is looking for the exponential growth in their business. And for that they need an extraordinary talent, an innovative talent. That's why this complete platform which we are building as a launch pad, which is the accessible, which is the intelligent with the use of the technology, which are creating that talent, connecting and making them ready, making them agile based on the requirements which industry can take and then exponentially grow. If industry looking for such platform, they can come on the platform and get that. So that is the core thing. Core thing is there, solving the problem. Ultimately, if we are solving the industry problem and our core focus is on industry, that is an industry, not beside institution. Obviously institution, talent, they are the core, because they are the only as a part of the supply going on as a talent supply pipeline, right? But solving the problem of the industry, that is the core. उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एज ए सप्लीमेंट एक टैलेंट पाइपलाइन यूज हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ दैट टैलेंट पाइपलाइन. And you rightly said, right? And also like this is the trend also which we see in the typical hiring as well. So for example, like the companies which were just using the traditional, and maybe now they are moving towards the AI based hiring. Do you have any advice or the information which you would like to share with them? Yes, I think it's good that they are adopting in traditional way. AI. See, everyone is going blindly towards the AI. Okay. That's the honest thing. And we have experience. AI tool से मैं स्क्रीनिंग करके आपको दे दूंगा, मेरा टूल 100% स्क्रीन करता है. I can bet you there are hundreds पैरामीटर्स जिस पे आप स्क्रीन कैंडिडेट्स को नहीं कर सकते हो सिर्फ एक रिज्यूम के बेसिस पे. I think in recently I was having a discussion with a director in a institutions in one of the big university only. He has asked me, संतोष आपके पास AI इंटरव्यूअर होगा क्या? हमें कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करने हैं, डेटा एनालिटिक्स पे इंटरव्यू करा के उनकी समरी निकलवानी है, उनको एक कंपनी के लिए रेडी करना है. द कंपनी वाज हायरिंग अ गुड पैकेज. व्हाई दे हैव कंडक्टेड, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि एक कंपनी आई थी जिन्होंने अपना टूल एज अ पायलट बेसिस पे टेस्ट करने के लिए वहां पे AI इंटरव्यू करवाया था.
और उसमें उन्होंने अराउंड 70% बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एआई है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे कुछ भी जा रहा है। मैं बोला सबको एआई इज डेड, रिजेक्ट तो कर दिया। उसमें कुछ अच्छे बच्चे थे जो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि there is a tone, there is a voice, everything being recognized and then that being captured and based on that the summary is coming. और एक मॉडल एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे किया गया, तो वहां से आप लिमिटेड ही कर सकते हो, राइट। सेम टाइम वो फीडबैक आप उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू के लिए तैयार ही करना है तो एक प्रॉपर पर्सन से इंटरव्यू कराइए, उनको प्रॉपर फीडबैक दीजिए ताकि वो बच्चे उस तरीके से परफॉर्म करे। नो डाउट उनकी जो अप्रोच है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उसी को आप मैंडेट कर दो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर एक कंपनी जो एआई के पीछे भाग रही है, एआई यूज करिए, बट यू शुड नो द लिमिट, कहाँ से कितनी क्वालिटी आ रही है। एग्जैक्टली। एंड व्हाट आई से कि अगर आप एक्चुअली क्वालिटी के लिए जा रहे हो ना, ट्रेडिशनल में कुछ करना है, हायरिंग हैकाथॉन के थ्रू जाइए, अपनी प्रॉब्लम दीजिए, सॉल्व कराइए, फिर वहां से हायर करिए। और उसमें जो प्रोसेस में टाइम कंजम्पशन कर रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए एआई यूज करिए, नो डाउट उसमें। So you are saying like let's start leveraging AI, but not only the blindly the AI. Yes. Put add the human in the loop, and also like fine tuning your process, because in the one hand side here it sounds good that the 70% you rejected and you just need to focus on the 30%, but there are also a high chance that someone who could have been part of the pipeline you missed it, and this is where like the talent, because you were not able to tap the talent, is going to somewhere else and then he is contributing and you missed that opportunity. So right. there is always a right balance between what is the filter information you want to filter out and what is something where you don't want to miss the opportunity. Right, that's true. Yeah. And overall I think you are on the right path, because first thing is you have not built a kind of a one product which is just solving a problem, but rather than you are focused more around the platform. Second thing is I think you understood very well all the 4 user journeys, hey, what we can do, and also you just did not stop it on one, but rather took it till the recruitment process, which might sometime it might sound easy if you just see only in that bubble, but when you combine it is the end to end the talent pipeline. And I think the AI enablement and the other thing which you are adding, for example, like how to validate the scoring and not being there is no partiality or something, this will make sure your platform is accessible to everyone and people can trust the platform, so that more and more such users come. And I think while having more and more such information, colleges etc being added, and keep it open for like tier 2, tier 3 and tier 4 cities, we can drive that, hey, the innovation and the openings are not applicable only for the people who are sitting in the Delhi NCR or in the metro cities, but to the last mile where the person, and if he is good at, he can start building those skill set, and even if like he is not being successful in the first attempt, maybe in the second and third attempt it is there. So I think it is a great help with through which through this platform you are doing it to the students. Yes sir, so that's the true, and thank you for that summarizing the thing and obviously touching the last mile students. The core focus in tier 3 and tier 4, because we come from there and we want to provide that opportunity to them. That's where we have introduced and we work on concept also. Every student at least participate in one hackathon. Yeah. In their complete entire journey of their degree, whatever degree he is pursuing, because that constructive environment he find out there, and exactly. That growth things, and there they come and build. So everything is accessible through where you will wait for them, and this platform is with that capability that whatever they are looking for, they can achieve there if they are following a proper roadmap. So that things we are providing. Thank you very much for sharing. It is always pleasure to talk with you, Santosh, and I wish good luck to the where you elevate team overall for taking the platform to the next level. Thank you Kuldeep sir. It's again same feelings. It's great to interact with you and share with the audience who is listening to us, and stay connected for the more information, more knowledge with Techie Talk with Kuldeep, and start learning, keep growing, and keep accessing the opportunities. Thank you.
That's it for this episode of Techie Talks with Kuldeep. Until next time, keep learning and keep innovating. Thank you for watching.